નમસ્કાર, હું છું અંજલિ રાવલ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી તરફથી અને આજે કેટીવી પહોંચી ગયું છે અમદાવાદની અંદર વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે હિલ્લોક હોટલમાં અને આ હિલ્લોક હોટલની અંદર અમે લોકો આજે પહોંચ્યા છીએ દિવ્ય ભાસ્કર પ્રેઝન્સ એમએસએમઈ અવોર્ડ્સ 2025 ની અંદર। एमएसएमई क्षेत्रे थती नीतिगत चर्चाओ थई साक्षी पण बनीशुं। प्रत्येक एवी यात्रा माटे आ अवॉर्ड्स छे जेमणे नानकड़ी शरूआत करीने आजे पोतानी ब्रांडने वैश्विक स्तर उपर लई गया छे। सो आजनो दिवस आ तमाम એટલે કે આપ તમામ ઉદ્યોગ સાહસિકો માટેનો છે। તો આપ સૌને સશત વંદન કરીને આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને ફરીથી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે અને આ સ્વાગત એ આપણે માત્ર તાળી પાડવા માટે નથી પાડવાની, પણ આપણે આપણા પોતાના અચીવમેન્ટ માટે, આપણી આજુબાજુમાં બેઠેલા આપણા જ જેવા ઉદ્યોગ સાહસિકોના અચીવમેન્ટ માટે તાળીઓ પાડવાની છે અને આ તાળીઓથી આખા આ ઓડિટોરિયમને ગુંજાવવાનો છે। સો યસ, એક વાર જોરદાર તાળીઓ સાથે શરૂઆત કરીએ છીએ દિવ્ય ભાસ્કર એમએસએમઈ કોન્ક્લેવ એન્ડ અવોર્ડ્સ 2025। આજનો કાર્યક્રમ મેં જેમ તમને કહ્યું કે આપણા જ્યુરી મેમ્બર્સ અને આજે જે આપણા પેનલિસ્ટ છે એ એમના સપોર્ટથી તો ખૂબ સુંદર રીતે આજે થઈ જ રહ્યો છે, પણ એ સાથે સાથે સ્પોન્સર્સ એન્ડ પાવર્ડ બાય સ્પોન્સર્સ એમને પણ થેન્ક યુ ચોક્કસ કહેવું પડે, કારણ કે એમના સપોર્ટ થકી પણ આજે આપણે આ કાર્યક્રમ કરી શક્યા છે। તો સૌ પ્રથમ હું ખાસ આભાર માનીશ અમારા કો સ્પોન્સર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ગ્રીન પીલ્સને। આપના અમૂલ્ય સહયોગ અને એમએસએમઈ ક્ષેત્રને સતત પ્રોત્સાહન આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ સર। દિવ્ય ભાસ્કર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે અને આ સાથે જ આ કાર્યક્રમની શાન વધારનારા એ તમામ પાવર્ડ બાય સ્પોન્સર્સ અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ, જીઆઈડીસી સ્ટાફ એસોસિએશન, ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક એન્ડ ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ, આપ સૌના પણ સહકાર અને ઉત્સાહ માટે અમે ખૂબ ખૂબ આપના પણ આભારી છીએ। અને હવે હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા માંગીશ CEO ઓફ દિવ્ય ભાસ્કર ગુજરાત શ્રી ધર્મેન્દ્ર અત્રીજી। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ તાળીઓ સાથે સરનું, જે આજના આપણા મોડરેટર એન્ડ પેનલિસ્ટ એમને મોમેન્ટો આપી એમનું સ્વાગત કરશે। સો ખૂબ જ ગૌરવ અમે અનુભવીએ છીએ સર કે ગુજરાતના ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના જાણીતા અને પ્રતિષ્ઠિત પેનલિસ્ટ જેમનું માર્ગદર્શન આજે આપણા માટે ખૂબ ફ્રૂટફુલ રહેવાનું છે। હું સૌથી પહેલા મંચ પર આમંત્રિત કરીશ। સાથી મોટા ભાગે પરિચિત છું, અદ્ભુત જીરી પસંદ કરી છે એવા અમારા 90 આપણા ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, સ્ટેટ બેંકના વડાશ્રી, જે લોકોને આજે 39 જણને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે એવા ઉદ્યોગકાર ભાઈઓ બહેનો, પત્રકાર મિત્રો, આજે એક વાતનો આનંદ છે, આનંદ એ વાતનો છે કે ગુજરાત આજે સમગ્ર ભારતની અંદર એક ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ગુજરાત એક વિકાસ મોડેલ છે। બીજા રાજ્યો ગુજરાત શું કરે છે, ગુજરાતમાં શું થઈ રહ્યું છે, ગુજરાતે કેવી રીતે પ્રગતિ કરી એનો અભ્યાસ કરવા જ્યારે ગુજરાતમાં આવતા હોય તેવા સમયે ઉદ્યોગકારોને પ્રોત્સાહિત કેવી રીતે કરી શકાય એ બાબતે હંમેશા દિવ્ય ભાસ્કરની ટીમ હું કેટલાય ટાઈમથી જોઉં છું કે એમને પ્રોત્સાહિત કરીને કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપી શકાય। અહીં જુરી બેઠી હતી, વાતચીત કરતા હતા, એમના જે પ્રશ્નો હતા એ આપણને લાગે કે પ્રશ્નો માત્ર અહીં નહીં સરકારના બધા જ ક્ષેત્રમાં રજૂઆત કરતા હોય છે એવું સરસ મંચ ગોઠવીને આ કાર્યક્રમ કરે છે। હું દિવ્ય ભાસ્કરને શુભકામનાઓ આપું છું। એની સાથે સાથે જે 39 જણને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે એમને ખૂબ શુભકામનાઓ આપીને માતાજીને પ્રાર્થના કરું કે હજી આપ આમાંથી વધુમાં વધુ પ્રગતિ કરો, ગુજરાતનું નામ, ભારતનું નામ રોશન થાય, એમાં આપનું પણ યોગદાન રહે એવી આપ સૌને મારી શુભકામનાઓ છે। વિશેષ વાત હું એટલા માટે
જુરીશ્રીને સાંભળતો હતો, ઉદ્યોગકારશ્રીના પ્રશ્નો. હું તમને બધાને મિત્રોએ કહું છું કે ગુજરાત 2003 પછી બદલાઈ ગયું છે. હું એની લાંબી વાત નહીં કરું. આપણા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે એમને વિચાર કરીને પહેલી ફેર 2003માં વાઇબ્રન્ટની શરૂઆત કરી. ત્યારે મિત્રો આપણા તો જે કહી શકાય કે નાના ઉદ્યોગકારો એ માત્ર 1,28,000 હતા. આજે વધીને ગુજરાતમાં 21 લાખ છે. આપણે બતાવીએ કે ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગકારો ધીમે ધીમે કરતા કરતા એની બહુ મહત્વતા લોકોને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને ગુજરાતનો જે વિકાસ ફાળો છે એમાં પટવારીજી બરાબર કહેતા હતા કે નાના ઉદ્યોગકારોનો બહુ મહત્વનો ફાળો રહેતો હોય છે. એ લોકોની મદદથી અનેક પ્રકારની કામયાબીઓ જે આપણે પ્રાપ્ત કરી છે એ આજે પણ ગુજરાત કરતું રહે છે. તમારા બધાના આભારી. આજે મારે એ કહેવું છે કે એ વખત આપણી આવક એક વ્યક્તિની 18,753 રૂપિયા હતી, આજે વધીને 2,73,000 રૂપિયા થઈ છે. તમે કલ્પના કરો ગુજરાતે કેટલી પ્રગતિ કરી છે. ગુજરાતમાં એમ કહી શકાય, હું ઘણી બધી મેં એટલા માટે નાના મોટા ડેટા આપને આપું છું કે 41% નિકાસ આપણા ગુજરાતમાંથી થાય છે. એ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રી ભાઈઓ સમગ્ર ભારતની અંદર 41%થી વધારે નિકાસ આપણે કરીએ છીએ. આપણે અનેક ક્ષેત્રે નંબર 1 પર છીએ. ઘણી બધી એમ કહું છું દુનિયાની 500 કંપનીઓમાંથી 100 કંપનીઓ આજે ગુજરાતમાં છે. ગુજરાત માટે ગૌરવ છે. જીડીપીમાં આપણો 8.4 આપણે ધરાઈએ છીએ. રોજગારી આપવામાં ગુજરાત નંબર 1 છે. અને એને બેકારી જે રેશિયો કહેવાય કે ભાઈ ગુજરાતમાં બેકાર લોકો કેટલા, તમે બધા ગૌરવ લઈ શકો કે પહેલા 2.7 હતો, એ ઘટીને હવે 1.1 રહ્યો છે. એ ગુજરાત માટે સૌથી મોટી ગૌરવની વાત છે. આવી અનેક પ્રગતિઓ જ્યારે ગુજરાત કરતું હોય ત્યારે, નાના ઉદ્યોગકારો બેઠા હોય ત્યારે આદરણીય અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નાના ઉદ્યોગકારોને કેવી રીતે ફાયદો થાય, કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય એની હંમેશા ચિંતા કરતા હોય છે. અને તમે બધા જોયું હશે કે સિંગલ વિન્ડો, 20થી વધારે જુદી જુદી પોલિસીઓ, 12થી વધારે સહાય નાના ઉદ્યોગકારોને તમામ પ્રકારની, એ વ્યાજ સહાય હોય, ટેરિફ હોય. આજે એમ કહેવાય કે હું તમને ઘણા બેસું તો 12 વસ્તુઓમાં નાના ઉદ્યોગકારોને કેવી રીતે આપી શકાય એવડું મોટું ડેવલપમેન્ટ ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. ગુજરાત સરકારે વિચારે છે કે નાના ઉદ્યોગકારો કેમ કરીને ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટે 3 વર્ષ સુધી મુક્તિ. કોઈ પણ લાયસન્સ, પહેલા તમે બધા વડીલો એમને પૂછજો કે લાયસન્સ લેવા જવું પડે, એને કરાવવું પડે, ફલાણું કરવું પડે, ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરતા કરતા વર્ષ 2 વર્ષ થઈ જાય. આજે તમે 3 વર્ષ સુધી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરી દો, બિઝનેસમાં આવો અને પછી આ બધી પ્રવૃત્તિ કરો. એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે ગુજરાત સરકારે કરી છે. નાના મોટા આપણા જે પ્રશ્નો હોય છે એમાં પણ પહેલા 1 હતી, એની જગ્યાએ 5 આપણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉકેલી શકાય એવી જુદી જુદી વ્યવસ્થા કરી છે. એની સાથે સાથે મારે તમને મહત્વની વાત એ કરવી છે કે 21મી સદી છે. 21મી સદીમાં જો આપણે ટકી રહેવું હોય તો હરીફાઈની દુનિયા છે. માણસ સહેજ વિચારે અને ક્યાંય આગળ નીકળી જાય એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ છે. પહેલા આપણી હરીફાઈ જે લોકો મેં હમણાં જોયા તો મોટા ભાગના 80% હવે યુવાન મિત્રોના હાથમાં વહીવટ આવી ગયો છે. પણ અમે બધા જ્યારે બિઝનેસ કરતા ત્યારે જિલ્લા કક્ષાની, ગુજરાત કક્ષાની, સૌરાષ્ટ્રમાં હરીફાઈ હોય. હવે ભારત અને ભારત કરતા વિશ્વમાં હરીફાઈ થઈ ગઈ છે. વિશ્વમાં કંઈક થાય એની અસર આપણા સુધી પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ ગયું હોય એ વખતે આપણે ચાલવું હોય તો કેવી રીતે ચાલી શકાય એનો ચિંતન કરવાનો સમય આપણા માટે છે. બધા જ મિત્રો ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ આગળ વાત કરતા હતા, હું 2-4 મિત્રોને વાત કરું છું એટલા માટે કે હવે જમાનો બદલાનો જ. હવે આપણે બધા કોમન ફેસિલિટી ઊભી કરવી પડશે. આપણા ઉદ્યોગકારોને જે આપણી પડતર કોસ્ટ છે એ કેવી રીતે નીચે લાવી શકાય એનું ચિંતન કરવું પડે. તમે ફોરેનની અંદર જોતા હશો કે બધી જ કોમન ફેસિલિટી હોય, ખાલી મશીન લગાવવાનું હોય, બ્લોક લગાવે, એ લોકો 4 જણા કામ કરતા હોય, આપણે અગર 40 જણાએ કામ કરવું પડે. એ સ્થિતિની અંદર આપણે પણ ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર
એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થાય એ બાબતનું ચિંતા આજે કરી રહી છે. તમને બધાને એમ લાગે કે સ્માર્ટ થાય, ડેવલપમેન્ટ થાય, એના માટે વાતથી નહીં, અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર કરી રહી છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પહેલા આપણે સપનું કેટલું જોતા, 2-5 વર્ષનું થાય, હા થાય. અત્યારે 2047 નો આપણો રોડ મેપ તૈયાર છે. ભારત 2047 ક્યાં હશે, કેવી રીતે હશે, એ આખી એની ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયો છે. અને ગુજરાત એક પહેલું રાજ્ય છે. અમારા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીએ આ 5 ઝોનમાં વેચીને સુરત આપણે પહેલો ઝોન ચાલુ કરી દીધો છે. ગુજરાત 2047 નો મેપ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને આજે કદાચ અમારા સીએમ સાહેબે ટ્રીક કરી છે એઆઈની, એની અંદર બધી જ વસ્તુઓ ડેવલપમેન્ટ, કે ભાઈ ચોથી ક્રાંતિ આવવાની છે, ચોથી ઉદ્યોગની સ્થિતિ થવાની છે, એ પ્રકારની મશીનરી સાથે આપણે કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે બધા સાથે મળીને કરવાની છે. આવનાર સમય મિત્રો સમજજો કે પહેલા લોકો કહેતા કે ભારત છે ને સોનાની ચીડિયા કહેવાતી, વિશ્વનો 25% વેપાર ભારતમાં થતો હતો. એ ફરીથી પરિસ્થિતિ ડેવલપમેન્ટ થાય એ બધી જ વસ્તુઓ સરકાર અને સાથે સાથે ઉદ્યોગપતિશ્રીઓની ટીમ ડેવલપમેન્ટ કરવાની છે. હમણાં એક જીડીપીની વાત થતી હતી કે લોજિસ્ટિક કોસ્ટ આપણા તો 13 થી 14%, 15% છે. ફોરેનની અંદર 7-8% છે. આપણા વચ્ચે 5-6% લોજિસ્ટિક કોસ્ટની ગેપ છે. ટાઈમની પણ ગેપ છે. સિંગાપુરમાં એક તમે કન્ટેનરના 3 મિનિટ થાય, આપણને અહીં આગળ 30 મિનિટ થાય. આપણે સમય અને પૈસા કેવી રીતે બચી શકાય એના માટેની વ્યવસ્થા પણ આપણે કરીએ છીએ. ગુજરાત એવું પહેલું રાજ્ય છે 1 મહિનાની અંદર કડીથી અને આ બાજુથી હવે એની લોજિસ્ટિક કોસ્ટ 2% પટવારી સાહેબ અમે ઘટાડવાના છે. આ અભ્યાસ કરીને કહું છું. 2% એટલે મોટી ક્રાંતિ છે. હવે આપણે ટ્રકોમાં મોકલતા હતા, બીજે મોકલતા હતા, આપણે રેક દ્વારા સીધી પોર્ટ પર મોકલીએ એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે મહિનામાં ઉદ્ઘાટન કરીને ડેવલપમેન્ટ કરી દીધી છે. લોજિસ્ટિક કોસ્ટ કેવી રીતે ઘટે એ પ્રકારનું ચિંતન કરીએ છીએ. હમણાં જેમ કહેવામાં આવ્યું કે સીટીપીની ચર્ચા થતી હતી, પાણીની ચર્ચા થતી હતી. મિત્રો તમને બધાને ખબર હશે કે 10 રૂપિયા વધતા હતા. બધાએ રજૂઆત કરીને આપણે બધાએ 10 રૂપિયા 1 વર્ષે વધતા હતા સાહેબ, આપણે 3 વર્ષ કરી દીધા. એટલે સીધા 6% ઘટાડી દીધા પાણીમાં કે વેપારીઓ સેટઅપ કરી શકે. કચ્છના અમારા પ્રમુખ શ્રી અવારનવાર ચિંતા કરે છે, પણ પાણીની ચિંતા આપણે બધાએ સાથે મળીને કરવી પડશે. એની કોસ્ટ આજે 60 રૂપિયા, મને લાગે છે 70-72 રૂપિયા કોસ્ટ આવે સાહેબ. સૌથી પહેલી ફેક્ટરી મેં 2001માં વેલ્સપનના જોડે ગોકુલ અમે નખેલી. પાણી ટેન્કરથી લાવતા હતા, ટેન્કરથી લઈને પાણી ઉત્પાદન કરતા એવી સ્થિતિ હતી. અત્યારે તો ભગવાનની એ મેર થઈ ગઈ. કચ્છમાં સૌથી વધારે વરસાદ કચ્છમાં પડે છે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી, તમે જોતા હશો. તો આગળ મીઠું પાણી લેવું બહુ અઘરી વસ્તુ હતી. હવે મીઠું પાણી પણ તો આગળ ડેવલપમેન્ટ થવા માંડ્યું છે અને એ વ્યવસ્થા મેં એમને કરવાનું કીધું છે. છતાંય આપણે બધાએ કોસ્ટની અંદર 47 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, 52 રૂપિયા કેવી રીતે થઈ શકે એના બાબતનું પાણીની પણ આપણે ચિંતા કરીએ છીએ. કોમન ફેસિલિટીમાં પર્યાવરણની ચિંતા થતી હતી. હું અહીં બેઠો એટલું સાંભળ્યું એટલું જ હું તો કહું છું. પર્યાવરણ આપણા માટે મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે ઉદ્યોગોની સાથે સાથે આપણી ભાવિ પેઢીને શું આપવા માંગીએ છીએ એટલી આપણા માટે બહુ જરૂરી છે. અને 2070માં નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે નક્કી કર્યું છે કે આપણે 0 કાર્બન, એટલે ભારત એક એવો દેશ બનવાનો છે કે 1% પર્યાવરણ ના હોય એ રીતે આપણે વિકાસ કરવાનો છે. અને એમાં તમારો બધાનો સહયોગ અને જે વાત કરી પટવારીજી એ બહુ સાચી વાત છે. એના માટે આપણે ઈટીપી થી માંડીને કોમન ફેસિલિટીમાં સાહેબ ગોઠવી દીધું છે. આપણે જીઆરડીસી નો પહેલો તો આગળ જ્યારે અંકલેશ્વર ને બધું કર્યું ત્યારે એ પણ એનો પાઠ છે કે નાના લોકો ક્યાં લેવા જાય, કેવી રીતે સમજે, એ વ્યવસ્થા ના કરવી પડે એના માટેની યોગ્યતા સરકાર કરી રહી છે. આપને લોકોને હું ખાલી નાનકડી વાત કહીને મારી વાત પૂરી કરું છું કે તમે બધા ચિંતા ના કરતા. જે વડીલોએ ભારતની ચિંતા કરી, મેં ઘણા બધાને પૂછ્યું. હમણાં એક યુવાન મિત્ર આવ્યો તો મેં કીધું તમે કર્યું કે ફાધરનું હતું? મને કે ના સાહેબ મેં કર્યું. સ્ટાર્ટઅપ માટે ગુજરાતમાં આખા ભારતમાં આપણે નંબર 1 છીએ. અને સ્ટાર્ટઅપ કેવી રીતે કરી શકાય, કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય એની અનેક યોજનાઓનો લાભ
હું યુવાન મિત્રોને કહું છું, નાના નાના ઉદ્યોગકારોને કહું છું કે તમે બધા લેજો. એની સાથે સાથે નક્કી કરજો કે આવનાર સમય આપણો જ. હવે વિશ્વમાં પહેલા ભારત જે જતા ને અને આજે ભારત જ્યાં દિલીપભાઈ બેઠા છે, અમારા કેસ્ટરમાં કેવી પરિસ્થિતિ હતી, આજે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. હવે વિશ્વ ભારતને કાંઈ આઘું પાછું કરી શકે એ જમાનો જતો રહ્યો છે અને વિશ્વની મહાતીજી સત્તા બનવાના છીએ આપણે, વિશ્વગુરુ બનવાના છીએ, વિશ્વબંધુ બનવાના છીએ અને આત્મનિર્ભર બનવાના છીએ. એમાં આપ સૌનો સહયોગ રહે. આ ભાવિ પેઢી બેઠી છે એ લોકો 2047ની અંદર આપણી પેઢી એવી તૈયાર થાય કે જે પહેલા ડેવલપમેન્ટ હતા એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે બધા સાથે મળીને કરીએ. હું સરકારની યોજના એટલા માટે નથી ગણાવતો કે એના માટે ઘણો બધો પીરિયડ જોવે, ઘણો બધો સમય જોવે, પણ સમય આપણો જ. 21મી સદી આપણી છે અને આપણે બધા જો સાથે મળીને ટેકનોલોજીથી માંડીને ગ્રીનથી માંડીને નવો નવો સમય, એટલે આજે 2, 5, 10 વર્ષે 25 વર્ષે શું થવાનું છે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરીએ. અને મિત્રોને હું કહું છું કે હવે સ્કિલ બેઝ આપણે તૈયાર કર્યું છે. મારી પાસે સમરોજગાર છે. અમે લોકો ઉદ્યોગપતિ શ્રીઓની પડતર કોસ્ટ નીચી આવે, સ્થાનિક લોકોને રોજગારી તો પ્રાપ્ત થાય એના માટે સ્કિલ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી છે. તો જ સ્કિલ તૈયાર થઈને તમને બધાને એવી તૈયાર સ્કિલ મળે કે એક ઉદ્યોગ નખાઈને તરત સ્કિલની ડેવલપમેન્ટ થાય એ પ્રકારની પણ આપણે વ્યવસ્થા કરી છે. એરિએશનની વાત થતી હતી, હું વિશેષ વાત નહીં કરું. ચોક્કસ કહીશ કે આખા ગુજરાતની અંદર 12 જગાએ હમણાં નાયડુ જોડે બોમ્બે અમારી સાહેબ મિટિંગ હતી અને 12 જગાએ અમે નક્કી કર્યું છે કે આવનાર સમય દરેક માણસ ઈચ્છે કે ભાઈ એરપોર્ટના નજીક હોય તો જ, નહીતર ઉદ્યોગપતિ 5 કલાક આવવામાં અને 5 કલાક જવામાં મુશ્કેલી પેદા ન થાય. એના માટે હમણાં કચ્છમાં આપણે કેટલા વર્ષ સુધી સ્કીમ ચલાવી, એની ટિકિટના પૈસા પણ ગુજરાત સરકાર ભોગવતી હતી. આ સ્થિતિમાં તો સુધીની આપણે ડેવલપમેન્ટ કરીએ છીએ. આજે વિશેષ નહીં કરતા આપ લોકોને શુભકામનાઓ આપી દિવ્ય ભાસ્કરને ફરીથી આવા પ્રયત્નો ચાલુ રહે, અમારા ઉદ્યોગકારોને આવી માહિતી મળતી રહે એવી અપેક્ષા સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય. मैं आप सभी का दिव्य भास्कर के इस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स फंक्शन में स्वागत करता हूं. आप सभी की ओर से दिव्य भास्कर को धन्यवाद देना चाहता हूं इस दूसरे वर्ष में जो इन्होंने सफलतापूर्वक एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स फंक्शन का जो आयोजन किया उसके लिए. इस पैनल डिस्कशन में आप सभी के सामने इस राज्य के और देश के बहुत अनुभवी और एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल उद्यमी यहाँ विराजमान है, जिनके साथ हम एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. इस डिस्कशन को शुरू करें उससे पहले मैं अपने आप से, या आप लोगों को सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ये एमएसएमई जो है जिसकी आज हम पूरे देश में चर्चा होती है, इसका इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या योगदान है और इस एमएसएमई सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं. इसी तरीके से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब आज आप सभी जो एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल एंटरप्रेन्योर्स विराजमान है वो उन सब बातों का जवाब देंगे और हम चर्चा करेंगे इस बारे में. इससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों से अवगत कराना चाहूंगा. एमएसएमई सेक्टर एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल अब तक भारत में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड है. अगर हम गुजरात की बात करें तो लास्ट 5 वर्षों में 37 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हुई है. एमएसएमई अगर हम बात करें तो इट इज द वर्ड इज यूज्ड मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. हम शुरुआत होती है मीडियम, पर ये मीडियम नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज है. और आज हम देख सकते हैं हमारे सामने जो विराजमान पैनल डिस्कशन में जो है, उनको देखकर हमें लग सकता है कि इनका भी कितना योगदान इस देश, राज्य और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में. इस पैनल की शुरुआत जो है मैं सबसे पहले चिंतन जी ठक्कर से करना चाहूंगा. सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, एमएसएमई सेक्टर में जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं
उससे रिलेवेंट हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए ताकि हम उन चैलेंजेस से बाहर आ सकें? थैंक यू। जैसे आपने कहा कि एमएसएमई, तो एमएसएमई की डेफिनेशन भी पिछले 2 साल में सरकार ने और हमने बदल दी कि पहले 50 करोड़ तक के उद्यमों को एमएसएमई बोला जाता है। तो अगर कोई चीज़ बदलनी है तो उसकी शुरुआत माइंडसेट से होती है। तो ये माइंडसेट बदलने के लिए मिनिमम 250 करोड़ जो कर दिया गया वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 2 तरह के एमएसएमई आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं। एक जो स्टार्टअप्स हैं और यूथ है जो एक स्टार्टअप करके एमएसएमई की शुरुआत कर रहा है। तो उनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स है, उनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ एडवाइजेज है। और सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एमएसएमईज है, उनको क्या करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। जैसे बताया गया कि द कॉन्टूर्स ऑफ बिजनेस हैव चेंज। एक जमाना था जैसे कन्वेंशनल बिजनेस थे, आयरन, स्टील, 30 साल 40 साल में एक नया इनोवेशन आता था। एक साइकिल खत्म करने में 25 से 30 साल लगते थे। अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इंडस्ट्री 12 साल से 14 साल के हुआ करते थे। एक वो जमाना था, और आज की तारीख में प्रोडक्ट को कंसेप्चुअलाइज करके, उसको डिजाइन करके, उसको लॉन्च करके, उसके मरने में ये 8 साल से 10 साल का प्रोडक्ट साइकिल हो गया। तो उसकी सेल्फ लाइफ इतनी कम हो गई है कि आपको सबसे पहली चीज की जो जरूरत है वो स्पीड की है। गॉन आर द डेज जब आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन 5 साल में एक नई चीज देगा। वो समय था। और आज का कि अगर आप 15 दिन मार्केट से बाहर हो, 15 दिन की इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टिल यू आर आउट ऑफ बिजनेस। तो स्पीड इज समथिंग विच इज दी, जैसे लोग नोकिया का मॉडल करते हैं, तो नोकिया का लॉन्च से लेके उसका पीक तक पहुंचना और वो पीक से वापस नीचे आ जाना, ये सब हमने 10-12 साल में कर लिया, देख लिया। एक टाटा मोटर्स होती थी कि वो अब कंसेप्चुलाइज करके एक पीक पे पहुंच के नीचे आना, ये साइकिल 25, 30, 40 साल की होती थी। तो आज की तारीख में एमएसएमई को जो स्पीड है वो तो उनको हर इनोवेशन है, कॉस्ट कटिंग है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, सोचने और इम्प्लीमेंट में कोई समय रहना नहीं चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज पेरिनियल। सेकेंड इज कि अपने बात करते हैं सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्या करना वो लिस्ट तो बाद में करेंगे। फॉर एग्जिस्टिंग एमएसएमई दे हैव टू अनलर्न व्हाट दे हैव लर्न्ड इन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। आज की तारीख में आप देखेंगे सेकेंड जनरेशन के जो भी बच्चे एमएसएमई में ऐड हो रहे हैं वो अपने लिए एक अलग निश ढूंढ रहे हैं। ही विल सेकेंड मी इन दैट। और रीजन ये है कि उनको पता है कि उनकी ग्लोबल जो ट्रेंड्स है वो कहीं और चल रहे हैं, और पुराना जो बिजनेस जनरेशन से आ रहा है दैट इज नॉट मैचिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पीछे से लर्न करके है, वॉट एवर हैज ब्रॉट यू टू दिस लेवल विल नॉट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो अनलर्न करना बहुत जरूरी है लर्निंग से पहले। थर्ड, इनोवेशन। इनोवेशन अगर बात करें तो ऑल द कंटूर्स ऑफ द गेम्स हैव चेंज। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहे तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज ड्राइविंग द बिजनेस। तो आज अगर कुछ बोलते हैं अच्छा प्रोडक्ट, तो अच्छा प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट सबको बनाना ही बनाना है, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। तो सर आपका कहना है कि इस ग्रोथ के जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है स्पीड, ये मैं मान सकता हूँ। और सबसे बड़ा दूसरा जो है यूथ, जो यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो किस कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रही है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस ऐसा एमएसएमई सेक्टर के लिए। अच्छा सर, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिगीश जी दोषी से। सर जैसा कि चिंतन जी ने बताया कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनोवेशन, स्पीड और यूथ जनरेशन को देखते हुए हम ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसकी इंडिया में, और हम अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स को लेकर,
तो ये हम इसकी ग्रोथ इस सेक्टर में कैसे कर सकते हैं? पहले तो क्या है कि कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने चाहिए। क्लस्टर, एक क्लस्टर है, उसमें कुछ एक प्रोडक्ट बन रही है, तो उसमें पूरा क्लस्टर में सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग होगा। मतलब समझ लो कि सोलार पैनल बन रही है, तो एक सोलार पैनल का बड़ा यूनिट होगा, एक सोलार ग्लास का होगा, एक पीवी एनकैप्सुलेशन फिल्म का होगा, एक एल्यूमिनियम फ्रेम का होगा, एक बैकसीट का होगा, एक जंक्शन बॉक्स का होगा। वैसे करके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग ऑनर हो सकते हैं हर एक के। लास्ट में एक प्रोडक्ट बन के एक्सपोर्ट चलेगी। तो एमएसएमई का एक मेन क्या है, आरएनडी के अंदर एमएसएमई को लंबा इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो है आरएनडी के अलावा चलेगा नहीं। इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वर्ल्ड में कॉम्पीट करना है, बढ़िया क्वालिटी चाहिए विद रीजनेबल प्राइस चाहिए। तो ये क्लस्टर जो है वो परफेक्टली चाहिए। सेकंड जो है, अपने वहां हर एक एमएसएमई अपने वहां एक है कि एंटरप्रीनियर जो है वो हर एक चीज अपने पास रखे, अपना नॉलेज, और वो सब खाली फैमिली में देते हैं। अभी टाइम आ गया है कि इक्विटी डाइल्यूट करो, बर्डन मत बढ़ाओ, इंटरेस्ट का बर्डन मत बढ़ाओ, लोगों से पैसा मत लो, बैंक से पैसा कम लो, और इक्विटी जो है अपनी इक्विटी सर्टन रेट में डाइल्यूट करके पैसा लो। तो वो इन्वेस्टर जो है, वो इन्वेस्टर आपको ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। आपकी फैक्ट्री बहुत जल्दी आगे जाएगी, वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सकती है, और आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होगा। ये दो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है वो आज अपनी कंट्री का प्लस माइनस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 90% लोग स्टॉक मार्केट एंड जमीन की बात करते हैं कि जमीन का रेट कल इधर 10,000 रुपये वार था, 5 साल में इधर हो गया 35,000 रुपया भाव। तो पैसा कैसे कमाना, और स्टॉक मार्केट कि ये स्टॉक का ये रेट है और ये बढ़ के इतना पहुंच जाएगा। तो वो जो मैनिपुलेशन, या इसको जो भी वर्ड यूज करो, मतलब आई एम नॉट ए राइट पर्सन की मैनिपुलेशन भी यूज करूं मैं, लेकिन यंग जनरेशन जो है ना वो इस शॉर्ट गेम में जमीन, स्टॉक मार्केट, उसमें उनका दिमाग ज्यादा चलता है कंपेयर टू एक्चुअली प्रोडक्शन। आज अगर आप चाइना में जाओगे, मैं बार बार जाता हूं, मैंने कभी कोई आदमी को स्टॉक मार्केट की बात करते हुए देखा नहीं, जमीन की बात करते हुए देखा नहीं। एवरीवन इज वर्किंग, डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर देयर ओन फील्ड। तो सब अगर जो एमएसएमई है उनको मेन एक है डेडिकेटेड, अपने फैमिली में भी वही रखना चाहिए कि डेडिकेटेडली दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर प्रोडक्ट, हाउ टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट। तो ये सब चीज छोटी छोटी कई चीजें हैं। मे बी आज लंबा टाइम भी नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है, और आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बात जो है, जो मोदी जी का जो एक ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत, आप उस तरफ आपके विचार को आगे बढ़ाने के लिए उसी सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं। उसी को लेकर मेरा क्वेश्चन रहेगा पारस। मैं एक चीज बता देता हूं, मैं आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रीनियर। इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रीनियर हैं, दे आर मच मोर कैपेबल टू कॉम्पीट अगेंस्ट एनी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री बाय द क्वालिटी एंड बाय द कॉस्ट। तो हम सब में ताकत है, खाली सपोर्ट। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, और उसी बात को लेकर मैंने कहा है कि मोदी जी का जो एक ड्रीम है, या जो अभी जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका एक ड्रीम है, सपना है कि ये देश जो है आत्मनिर्भर बने। आपने खूब अच्छी बात कही है कि यूथ है, चिंतन जी ने यूथ की बात करी, इनोवेशन की बात करी, आपने बोला फैमिली, डेडिकेशन। अब ये जो बातें हैं वो एक मोदी जी के सपने को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो पारस जी से ऐसा रहेगा, आत्मनिर्भर भारत, इसमें एमएसएमई का क्या रोल है? जैसा कि सर ने ऑलरेडी बताया, तो हम अगर सेल्फ स्टैंड है, फैमिली, बिजनेस, डेडिकेशन, उस बात को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई का आत्मनिर्भर भारत में क्या रोल है? Thank you. First my question to the audience के हिंदी में बोलूँगा तो चलेगा कि गुजराती में? I think everyone will be fine in Gujarati and English, Hindi, whatever. No, because they need to understand, right? ज्ञान जो भी बढ़ रहा है। सर आपकी चाय पीने के बाद तो सबका वैसे भी दिमाग खुल जाता है, तो आप किसी में भी बात कर सकते हैं। Thank you. Okay. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, कोई भी कंट्री का जैसे ब्लड बोल दीजिए वैसा है। विदाउट दोज द कंट्री कैनॉट फंक्शन, कैनॉट सर्वाइव। सो इट इज,
ये जो MSME सेक्टर है, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लिए कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको कैसे आगे लिए जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे जितने भी आप एंटरप्रेन्योर से मिल लो, जितने भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल लो, सो हम गुजराती में बोलते हैं कि ये दिन होना चाहिए, चाल से भाव से न भाव से तो थशे। जिद रखोगे कि ऐसा नहीं ऐसा ही चाहिए तो डिफिकल्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो कस्टमर हमेशा हमको फीडबैक देता है, बट वो कान होने चाहिए सुनने के लिए। कि जैसे स्मॉल एग्जांपल देता हूं मैं, कई लोग बोलते हैं कि गुलाब के फूल होते हैं, उसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं, तो कांटे के बीच में गुलाब का फूल होता है, वो क्यों नहीं सुनते हैं? वो सुनने की कला है। तो पॉइंट ये है कि हमेशा ही वो बोलता रहता है, तो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझेंगे, तो अल्टीमेटली ये बिकॉज जितने भी बड़े हो है आज के डेट में, वो कोई टाइम पे कोई माइक्रो था, कोई स्मॉल था, कोई मीडियम था, वैसे करके आगे बढ़े। सो देयरफॉर अल्टीमेटली हर एक कंट्री के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और उसी को मद्देनजर चलते हुए रखते हुए वी हैव टू ग्रो इन दैट डायरेक्शन। बट व्हाट जोशी साहब सेड इज सो राइट, शॉर्टकट्स इसमें नहीं रखने चाहिए, लक्ष्य तय होना चाहिए, और लक्ष्य की ओर नजर रखते हुए फिर आप जो निर्णय लो वो सब सही है। अल्टीमेटली कोलैबोरेटिव भी हो सकता है, इनोवेटिव भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, काफी कुछ इसके अंदर हो सकता है। और मैं और एक चीज ऐड करूंगा कि एक साइकोलॉजी के अंदर एक आज की डेट में एक चीज है जो बोलते हैं गोल्डन फिश रूल। 10 सेकेंड याद कितना रहता है, समझ में कब आता है? 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में समझ में आ गया तो आपका मैसेज पकड़ लिया, वरना यू आर इन द क्यू, प्लीज वेट। बराबर अत्री जी? So that's what it is. पारस जी का कहना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए तो आत्मनिर्भर जो भारत का जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा सकता है। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि इनोवेटिव होना तो साथ में जरूरी है ही है, जो कि चिंतन जी ने और जिगीश जी ने भी बोला है। तो मेन जो उद्देश्य है वो किसी भी इंडस्ट्री का वो होना चाहिए कस्टमर ओरिएंटेड। अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे तो ये देश आत्मनिर्भरता की ओर जल्दी बढ़ेगा। मेरा अगला प्रश्न है प्रदीप जी से, सर कैसे हम एमएसएमई में इफेक्टिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि ग्लोबल मार्केट से कम्पीट किया जा सके? Thank you, Divya Bhaskar, for inviting us here. I feel that Gujarat is like Japan. पहले एक आता था मेरा जूता है जापानी, वो जूता फटा हुआ था, तो मैंने बहुत लोग को पूछा कि जापान और फटा हुआ मैच नहीं होता है। बोलता है जब ये वॉर हुआ था, जब बॉम्ब गिरा था न्यूक्लियर, उसके बाद वो लोग बदल गए। तो मैं चाहता हूँ एक बॉम्ब यहाँ भी गिरे और हम लोग जापान से आगे बढ़ जाए। सो इनोवेशन तो ऐसा है कि जैसे आज आप लोग ने यहाँ बुलाया, इंस्पायर किया। सो इफ यू हैव अ टारगेट कि भाई जैसे मेरा आइसक्रीम का सेल एक साथ में 200 करोड़ हो गया है, अब मैं नेक्स्ट ईयर अवार्ड लेने के लिए 800 करूंगा, तो उसके लिए इनोवेशन तो चाहिए। C.K. प्रहलाद जो मैनेजमेंट गुरु एक बार IIM में आए थे, बोला है मेक द स्मॉलेस्ट थिंग सेल द चीपेस्ट। तो मैंने इतना सा लॉलीपॉप आइसक्रीम बनाया, विसल भी लगा दी, बहुत चला, और उसको लेते लेते लोगों ने बड़ी चीजें भी खरीदी जिसमें प्रॉफिट था। सो आई फील दैट इनोवेशन एंड ऑल, इफ यू हैव अ सेल्स टारगेट, इफ यू हैव एंड द ऑल द इंडियंस इतने आगे हैं पूरे वर्ल्ड में, एवरीवेयर दे आर द CEOs। उल्टा ट्रम्प अभी बोल रहा है भाई ये इंडियंस को हटाओ यहाँ से, इतने पावरफुल हो गए हम लोग। सो व्हेन वी गो अब्रॉड हम इतना करते हैं, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं ऑल दिस।
एंड जो न्यूज़पेपर वाले एक छोटा सा मैसेज क्यों आज बुलाया है तो मैं भी बोल सकता हूँ, रोज वो लोग बोलते हैं, तो फ्रंट पेज में ना इंस्पायरिंग स्टोरीज होना चाहिए कि पैर टूट गया तो भी गोल्ड मेडल लाए, ये लाए वो लाए, पर फ्रंट पेज पे सुबह वाघ बकरी चाय के साथ बलात्कार का आता है, कोई मर्डर का आता है, कोई एक्सीडेंट का आता है. So and the government also is doing a wonderful job. They are proactive, but they must make a task force. कि भाई ये महीने में सिंगापुर, हांगकांग, दुबई क्या चल रहा है, how to improve. Overnight, you know, we must become like Japan. So I feel that proactiveness is very important. Our roads should be so nice. I have been abroad. I just went recently to America again and Costa Rica. There's no road broken, bridges not broken, bumps are so nice. Here the bumps hurt the car. So I feel if all these things government also does and we also help the government, things will change. The confidence will come. The youth is very powerful in India. They are very good, very well educated, but they need to be guided like the missile, or how the government did a wonderful job in Sindhur, in the war with Pakistan. They did a wonderful job. So we must do everything like that, and someday India will be in first 1 or 2. Thank you. तो सर आपने बात करी है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इस इनोवेटिव थिंग्स करने में गवर्नमेंट शुड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, व्हिच व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर आंसर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन और गवर्नमेंट का सपोर्ट. तो हमको ऐसी चीजें प्रोएक्टिवली करनी चाहिए जिससे लोग जागरूक हो, लोग उस चीज से इंस्पायर्ड हो, एक नई चीज करें ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करने के लिए. Entrepreneurs are all very innovative. वो कुछ भी देखते हैं and they observe and they act, and competition इतना है. और we especially in Gujarat, business is here. They don't want to work, but in business they come out with such fantastic ideas. लेकिन थोड़ा सा और करेंगे, if I tell everybody to raise their hand, they will raise this much. But really they can raise this much. Left hand तो इधर ही है अभी, और खड़े होंगे तो सीलिंग को टच करेंगे. So we can do marvelous job. The intention should be there and we are capable of doing it. तो जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया. एक सर ने कोई नाम लिया था कि उन्होंने कुछ IIM में सुना और उन्होंने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया चॉकलेट, और उसके साथ उन्होंने बड़े आइटम भी बेचे और उस तरीके से उनकी सेल बढ़ी. सर मेरा राजेंद्र जी से एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे है सर, जो ये MSME सेक्टर है, ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकती है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में. एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है प्रदीप जी ने, जो कि वो खुद किसी बात को सुन के उससे मोटिवेट या इंस्पायर्ड होकर या उनके दिमाग के आइडिया से उन्होंने वो चीज इंप्लीमेंट करी और उनसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी. बट जो स्टार्टअप है, जो यूथ है, न्यू जनरेशन, वो अपने जो स्टार्टअप या MSME जो उनका सेक्टर है उसको कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, उसमें आपका क्या? देखो, अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसको वेग देने के लिए वी हैव टू बी वेरी पावरफुल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पावरफुल करना होगा तो वी हैव टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी. तो द फर्स्ट माइंडसेट शुड बी ऑन क्वालिटी. अपने का एक बिलीफ है कि क्वालिटी प्रोडक्ट आर कॉस्टली और क्वालिटी बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा आती है. आई से दैट इज अ टोटली रॉन्ग माइंडसेट. क्वालिटी इज ऑलवेज फ्री. इफ यू मेक गुड क्वालिटी योर कॉस्ट विल गो डाउन. जैसे आप अच्छी क्वालिटी नहीं बनाते तो आपका काफ़ी रिजेक्शन होता है, काफ़ी रिटर्न आता है, काफ़ी रिपेयर करना पड़ता है. ये सब की कॉस्ट जो आप कैलकुलेट करें, दिस इज कॉल्ड नॉन क्वालिटी कॉस्ट. तो नॉन क्वालिटी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इज टू हाई. You will not believe most of the Indian industry non-quality cost is more than 10 to 15%. People don't know. So we have to go in that detail. And today China is very powerful. We have to accept that. In manufacturing they are master because they are going in lot of details which we are not going. हमने बोले हम अच्छे हैं, हम होशियार हैं, बहुत पावरफुल है, इससे काम नहीं चलेगा. चाइना के सामने अपने को कॉम्पीट करना होगा तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम व्हाट इज बेस्ट दे आर डूइंग. तो फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी. सो वी हैव टू कंटिन्यूसली
फॉर क्वालिटी, अरे क्वालिटी माइंडसेट ये होना चाहिए कि क्वालिटी इज नेवर कॉस्टली, क्वालिटी इज चीप. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज जो दूसरा डिफरेंटली कब तक काम करने का है कि वी हैव टू कंप्लीटली अप्लाई आवर माइंड इन इम्प्रूविंग आवर प्रोसेसेस. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो है कि देयर रेट ऑफ चेंजिंग, रेट ऑफ इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी, देयर प्रोडक्टिविटी लेवल इज वेरी लो एंड दैट इज टू बी इंक्रीज. और उसको इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू टेक ए हेल्प ऑफ सम आउटसाइड कंसल्टेंट ऑल्सो. बट वी गुजराती ऑलवेज कैलकुलेट मनी. कंसल्टेंट को 5 लाख रुपया देने का तो नहीं देंगे. अभी मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ. मेरे फ्रेंड का एक बेटा, उसने उसके बच्चे की शादी में 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा किया. उसकी इंडस्ट्री इज डूइंग वेल बट नाउ ही हैज अ स्टैग्नेंट लेवल. सो आई सेड कि यू employ some good consultant and he will show you. The consultant has given a fee of 5 lakhs rupees. He said it's too costly. I said you are full. You can spend 1.5 crore in your marriage, son's marriage. Why you cannot spend 5 lakhs rupees for changing yourself? Because what you are doing not right. Up to certain level you will be right, but after certain level you have to change. Where we are not ready. So this mindset needs to be changed. And if you change the mindset, we can improve the productivity like anything. तो सर आप बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की और माइंडसेट चेंज करने की. क्या ये इफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे? क्या अगर क्वालिटी डेफिनेटली जब आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब मैं क्वालिटी इंप्रूव करता हूँ तो आज आपने चाइना की बात करी. चाइना मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट में देखते हैं या इंडिया में भी देखते हैं चाइना के प्रोडक्ट सस्ते आते हैं. हम अगर कंपैरिजन करें क्वालिटी में तो कहीं ना कहीं हमको एक गैप दिखता है उसमें चाइना के प्रोडक्ट्स और इंडिया के प्रोडक्ट्स में. वो कितना इफेक्ट करता है इस प्रॉफिटेबिलिटी? नहीं, ये तो है, इतना जितना वो बिलीव करते हैं इतना नहीं है. चाइना में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी स्क्रिप्ट. दे आर वर्किंग लाइक दैट कि यू वांट 10 रुपीज में मटेरियल तो आपको 10 में दे देंगे. मैं बोलता हूँ 12 रुपया देने के तो मुझे वो मटेरियल देगा. ऐसे उनके अलग अलग है. वी हैव ए फैक्ट्री इन चाइना, सो आई अंडरस्टैंड देयर लॉजिक. मैं ऐसा समझ सकता हूँ अच्छा प्रोडक्ट देके अच्छी प्राइस खरीद के अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए. सो अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और उसकी प्रोसेस कंटिन्यूसली आप इंप्रूव करते जाओ तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी. आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल रियल. वन प्रोडक्ट इन बॉल बेयरिंग इंडस्ट्री इज 6201 bearing. In 1991, I was selling 1 cage at 1 rupees. Today I am also selling the same cage at 1 rupees. Prices have gone ahead, but we have changed the technology. We have changed the productivity. So that type of risk we have to take, that type of mindset we have to take, that no, I have to fight with the world. And I say the Indian have that capability, we can fight out. तो सर आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की. नाउ मेरा अभी अगला प्रश्न है शैलेश जी पटवारी से, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट GCCI है. सर आप तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आपने तो सभी इंडस्ट्रीज के लोगों को आपके सामने देखा है, डिस्कशन किया हुआ है. जैसा कि चिंतन जी ने बताया, आज गवर्नमेंट ने MSME की परिभाषा बदल दी है. परिभाषा बदली है टर्नओवर के बेस पे. मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप MSME को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और फॉर ईज ऑफ डूइंग MSME के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो सकता है? मेरा कहना है कि MSME के लिए बहुत स्ट्रगल करने का होता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज आर देयर बट इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर. दैट वी हैव टू एक्सेप्ट. दिस इज द रियलिटी एंड MSME इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज our country, we have number of MSME, but our contribution to GDP is 30%. While the developing countries, the GDP contribution by small scale industries, MSMEs are 70 to 75%. This clearly shows our MSME is not being brought up properly. Government has to make policy driven MSME upgradation. See the level of recently MSME 500 crores turnover and 100 crores without land and building investment is MSME. I doubt even 1% MSME is like this. The benefit goes to large scale industries.
they take the subsidy, they take the benefit of everything, which is the cake of the small scale industries. The rate of interest is also very. So what Raju bhai says, innovation, yes, I appreciate innovation. Startups is very much essential for any development. But whenever a startup or innovator goes to the bank, they will ask for 3 years balance sheet. He's a newcomer. How you are asking 3 years balance sheet? No loan is being given to them. और अभी How हमारे you बीच में- expect them? हमारे बीच में So, राज्य मंत्री आ चुके we हैं। have always, I think we are very fortunate कि सही समय पे सही क्वेश्चन We are पूछा गया always है discussing- और आपकी बात आई थिंक मैं ये समझता हूँ आपकी बात जो है सही मौके पर अभी पहुंचेगी तो CG is just like very close to me. I am always discussing, and he But is very much helping the इस MSME. मंच but इस मंच still के the माध्यम issues से are there. इस मंच के माध्यम So, से आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से साहब, पहुंच पाएगी मैं ये बोल रहा था कि MSME का प्रॉब्लम ज्यादा है बिकॉज ऑफ दी सर्टन पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इश्यूज है कि फिनेंशियल है, वो सब इश्यूज की वजह से पूरे वर्ल्ड में MSME का कंट्रीब्यूशन 70 to 75% GDP में है डेवलपिंग कंट्रीज में. अपने वहाँ 30 से 32% है. Though we have lot of MSMEs. So MSME's definition is very much important to be reduced. 500 crores turnover, I think no MSMEs have, sir. Even 50 crores you make it, hardly 5% will fall in that. So MSMEs benefit are taken away by the large scale industries. So this need to be attended. Secondly, sir, environmental issues, our Gujarat is mainly on pharma, chemical, textiles. उसमें क्या होता है, मेरे को चेंज ऑफ प्रोडक्ट करना है तो मेरे को एनवायरमेंट क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है. वो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए परमिशन नहीं है कि मैं लाल से येलो कलर बनाना है तो मेरे को नहीं बनाने देते हैं. अल्टीमेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट Ultimately, you have to go to the pollution control board, go to the central pollution control board. By that, you take 1 year and you spend 15 lakhs rupees. MSME can't spend like this. मेरा पॉल्यूशन लोड से आपका संबंध है गवर्नमेंट को, मैं पॉल्यूशन का बंद कर सकते हो. व्हाई यू आर आस्किंग मी टू गो फॉर परमिशंस? लार्ज स्केल को ये नहीं होता है. तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा MSME को जो अपना PM का विजन है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत करने में ब्यूरोक्रेसी इज कमिंग बिग वे एंड इट हैज टू बी चेंज्ड. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विराज शाह से. जैसा कि बात किया शैलेश जी ने फार्मा सेक्टर का, क्योंकि जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि फार्मा सेक्टर के लिए पोल्यूशन अप्रूवल, फार्मा सेक्टर को आप नेक्स्ट 5 से 10 सालों में किस तरीके से ग्रोथ देखते हैं MSME सेक्टर में? सर अभी मंत्री जी आ गए हैं और डिस्कशन को थोड़ा हमें शॉर्ट करना पड़ेगा. So first of all, let me appreciate Divya Bhaskar for this wonderful event where you are identifying and recognizing the star MSME performance of Ahmedabad and Gujarat. I believe recognition gives them a strength to go further. As far as the pharma sector is concerned, for the last 20 to 30 years, this sector has grown almost 1.5 times the GDP growth. And it is probably one of the very few industries जो consistently grow कर रही है. प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल का एक कॉन्सेप्ट दिया है हमें ग्रो करने में, इसमें फार्मा सेक्टर में भी कुछ चिंतन हुआ है और हम ये मान रहे हैं कि अभी जो 50-55 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है, by 2047 we are likely to scale 10x, which is approximately $500 billion. इस ग्रोथ में MSMEs एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और they can participate in the growth. So in terms of opportunities, in my personal belief, there are ample opportunities for Indian MSMEs. How do you do that? Of course, it will depend upon your individual strength and capabilities. लेकिन कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि जो कॉमन है. जैसे I talk of 4 C's. One is cost, compliance, creativity and capturing. तो let's say we are talking of capturing. अगर आप सिर्फ इंडिया में हैं, you try to capture your export markets. 190 countries take medicines from India. If you are in the ROW markets, आप regulated markets की तरफ USA और यूरोप की तरफ जाइए, तो there is a lot of headspace available for SMEs, all the small, medium and even large companies in this sector. So that is one of the positive side of this industry. Second C, we are talking of compliance. Pharma industry directly deals with health of people.
तो इसमें क्वालिटी और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में या कोई ROW में वर्क कर रहे हैं तो एक लेवल का कंप्लायंस होता है, अगर आप थोड़े और मेच्योर मार्केट्स में जाएंगे तो एक अलग लेवल का कंप्लायंस होता है। तो आपको जो भी आप आज अर्न कर रहे हैं उसमें से यू हैव टू इंश्योर दैट आप कंटिन्यूअसली रेगुलेटरी कंप्लायंस में इंप्रूव करते जाइए। दैट विल गिव यू हेड स्पेस टू एंटर इनटू मार्केट्स, मोर एंड मोर डोर्स कैन ओपन फॉर। आपका कहना है कि कंप्लायंस अगर हम करें, जो भी पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स है, ये एक बहुत बड़ा योगदान करेगा इस फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने, स्पेशली MSME सेक्टर में, राइट। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है संजय कुमार जी से। हमने बात करी ग्लोबल मार्केट की, हमने बात करी इंडिया की, हमने बात करी गुजरात की, सॉरी महेश जी से हमने बात करी इंडिया की, गुजरात की, ग्लोबल मार्केट। क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन महेश जी से है, कच्छ जो कि एक पार्ट है गुजरात का, हमने बड़े लेवल पे गुजरात की बात कर ली, आप कच्छ में MSME का किस तरीके से डेवलपमेंट देखते हैं और उसमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जो कि कच्छ पर्टिकुलर कच्छ एरिया को MSME सेक्टर में आगे बढ़ाया जा सकता है? थैंक यू। पहले तो दिव्य भास्कर का भी खास मैं अभिवादन करता हूँ कि आपने खास कच्छ को याद किया ये डिबेट में। तो आपने बताया कि MSME सेक्टर में तो आज कच्छ में आप देखिए तो जिस तरह से 2 पोर्ट डेवलप हुए हैं, खास करके मुंद्रा अदानी पोर्ट और कांडला पोर्ट। आज लास्ट ईयर का आप फिगर देखिए तो मुंद्रा लगभग 200 मेट्रिक मिलियन टन क्रॉस किया है, कांडला ने 150 मेट्रिक मिलियन टन क्रॉस किया है। आने वाले टाइम में थुना में DP वर्ल्ड का भी बहुत स्पीड में काम चालू है। तो ये कच्छ रीजन जो है वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 400 से 450 मेट्रिक मिलियन टन कार्गो क्रॉस कर जाएगा। तो जैसे दोषी जी ने बताया, पटवारी साहब ने बताया, सबने बताया कि नए इंडस्ट्रीज में जैसे इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लोग है वो शेयर बाजार और जमीन में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास और कुछ ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट उसी में जा रहा है। तो सर ये आने वाले टाइम में जो लॉजिस्टिक फैक्टर जो होने वाला है, जैसे हम सब जानते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचने के लिए अभी अपनी हर एक इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 11 से 12% के बीच में है, वो कैसे भी करके वो 8 या 9% तक जब तक नहीं आएगी तब तक हम 5 ट्रिलियन क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो कच्छ का जैसे आपने बोलूंगा तो मैं एक तो ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पटवारी साहब ने बताया, मैं उससे भी सहमत हूँ। काफ़ी गवर्नमेंट की कोशिश भी है, काफ़ी पॉजिटिव भी है गवर्नमेंट। लेकिन एक बार MSME स्टार्ट होने के बाद अगर उसको ये ब्रेकअप होता है, कभी वाटर कम, पानी कम मिलने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है और उसमें काफ़ी ब्रेक हो जाता है कभी कभी, तो उसके कारण वो एरिया का भी थोड़ा लोग आना चाहते हैं तो भी थोड़ा दूर जाते हैं। तो एक ये चीज़ को गवर्नमेंट अगर इंश्योर करे कि जो कमिटेड है, मतलब मेरे को हर मंथ 2 लाख लीटर वाटर चाहिए तो मिनिमम उतना मिलता रहे, 10% 20% आगे पीछे ठीक है, लेकिन उतना कमिटेड मिलता रहेगा तो मैं भी आगे मेरे कस्टमर को कमिटेड होऊंगा, आगे मेरे प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकूंगा। और सर सबसे बड़ा मैं एक माइनस पॉइंट बोलूंगा कच्छ के लिए, तो सर एयर कनेक्टिविटी से काफ़ी दूर है। आज अहमदाबाद से किसी को आना हो तो सीधा 5 से 5.5 घंटे का रास्ता लगता है। मतलब दिल्ली से, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क 2 या 3 डेवलप किए हैं, वहाँ पे काफ़ी दिल्ली की पार्टी है, वो मतलब बोलते हैं एकदम जरूरी हो तो ये हम कच्छ आते हैं, बाकी दुबई जाना हो तो इजी जाके आते हैं, कलकत्ता जाना हो तो इजी जाके आते हैं, लेकिन कच्छ आना हो तो हमको 2 दिन का प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो सर भी बैठे हैं, एविएशन मिनिस्टर भी उनके पास, ये सर हम ये करेंगे कि उड़ान कैसे भी करके कंडला पोर्ट में एक उड़ान तहत एक आध कोई फ्लाइट अहमदाबाद की कनेक्टिविटी वाला मिल जाए तो अपने आप ही वो सर कनेक्टिंग हो जाएगा। फ्लाई से जैसे यहाँ से भी मेरे को इन सबको भी इन्वाइट करना हो तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी लोग हाँ बोलेंगे, एंड में बोल देंगे यार 6 घंटा आने का 6 घंटा जाने का, रहने देते हैं। तो एयर कनेक्टिविटी सर कच्छ को चाहिए तो उससे काफ़ी ग्रो होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो सर आपका अल्टीमेटली अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो आपका भी यही कहना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो। देखिए अब सरकार ने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, सरकार ने हम जितने भी उद्यमी, मैं तो उद्यमी नहीं हूं बट आप जितने भी उद्यमी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक माध्यम बनाया है, और वो माध्यम है, उसके बिना हमारा कोई भी बिजनेस है वो सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। वो माध्यम है बैंक, और हमारे यहाँ विराजमान है DGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने डिस्कशन किया आत्मनिर्भर भारत, हमने डिस्कशन किया डेडिकेशन, हम ये भी डिस्कशन करते इक्विटी की, लोन नहीं होना चाहिए, कम इंटरेस्ट होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है प्रोत्साहित किया है कि वो MSME सेक्टर को अच्छी और सस्ती सुविधा पे लोन उपलब्ध कराए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है
जो पैनलिस्ट जो उद्यमी हैं उनके सारे डिस्कशन को लेकर आप एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप एक माध्यम है, भारत सरकार का हो राज्य सरकार का हो, एक आप माध्यम है, इस एमएसएमई की ग्रोथ में डिजिटलाइजेशन के साथ साथ कैसे आपका इस एमएसएमई ग्रोथ में सहयोग रह सकता है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया इस पैनल डिस्कशन के लिए। हम एमएसएमई एज स्टेट बैंक, हम एमएसएमई के बढ़ते हुए कदम में हर तरीके से सहयोग दे रहे हैं और देने को तत्पर हैं। हम अगर एमएसएमई की बात करें तो पहला रिक्वायरमेंट, अगर कोई यूनिट आती है तो करेंट अकाउंट
ગુજરાતમાં દિવ્ય ભાસ્કર કેટલાય વર્ષોથી સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાત એક વિકાસ મોડેલ છે અને વિકાસ મોડેલની અંદર અનેક લોકોનું યોગદાન છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે શરૂઆત કરી હતી અને એમને જે મેપ બનાવ્યો હતો, મેપ ઉપર ચાલીને આજે આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ જે કામ કરી રહ્યા છે એની અંદર દિવ્ય ભાસ્કરે ખરેખર એક અદ્ભુતતા ગોઠવીને ગુજરાતને એમાં બળ પૂરું પાડ્યું છે. હું દિવ્ય ભાસ્કરને ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને કહું છું કે ગુજરાતમાં તમે જે કામ કરી રહ્યા છો એના કારણે ચોક્કસ આપનું યોગદાન રહેશે. 39થી વધારે નાના ઉદ્યોગકારો એમની જે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એમને ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું અને કહું છું કે 21મી સદી એ આપણી ગુજરાતની, ભારતની, દુનિયામાં 2047માં ભારત જ્યારે આત્મનિર્ભર બનવાનું છે, વિશ્વગુરુ બનવાનું છે, ત્રીજી મહાસત્તા બનવાનું છે, તો આપ લોકોની પણ યોગદાન રહે એવી સૌને મેં વિનંતી કરી છે. MSME વિશે શું કહેવા માંગશો સર તમે? નાના ઉદ્યોગકારોનો સૌથી મોટો ફાળો હોય છે. 2003માં માત્ર 1,28,000 હતા, આજે વધીને 21 લાખ થયા છે. ગુજરાતમાં 12થી વધારે સહાયો છે, 20થી વધારે પોલિસીઓ છે. નાના ઉદ્યોગકારોને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એના માટે કોમન ફેસિલિટીથી માંડીને અનેક સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારનું આજે કામ કરવામાં આવે છે. સ્ટાર્ટઅપ માટે પણ સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાત નંબર 1 છે. વધુમાં વધુ સ્ટાર્ટઅપ આજે ગુજરાતમાં છે. તમે સમાજને શું મેસેજ આપવા માંગશો? સમાજમાં જે રીતે મેં ઘણા બધા ઉદ્યોગકારોને જોયા, યુવાન છે, સ્ટાર્ટઅપમાં આગળ વધીને આજે જે લોકો રોજગારી માટે જવાના હતા એની જગ્યાએ આજે રોજગારી આપવા માટે સક્ષમ બન્યા છે. તો યુવાન મિત્રોને કહું છું કે તમે બધા સ્ટાર્ટઅપની અંદર આ પ્રકારની વ્યવસ્થા, સરકારની જે સુવિધાઓ છે લઈને તમે રોજગારી આપો અને એ પ્રકારનું ગુજરાતમાં આપનું યોગદાન રહે એ પ્રકારની સમાજને હું વિનંતી કરું છું. મારું નામ વિકાસ મહેશ્વરી છે, ડાયરેક્ટર ફાઉન્ડર ગ્રીનફિલ્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમે એના ફાઉન્ડર છીએ. અમે લોકો ગ્રીન એનર્જીમાં કામ કરીએ છીએ અને ગ્રીન પાવર ની કંપની છે અમારી, જેમાં અમે લોકો સોલાર, વિન્ડ, બેટરી સ્ટોરેજ અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન ક્ષેત્રમાં કામ કરીએ છીએ. અમે રૂફટોપ સોલાર અને મોટા મેગા સોલાર પાર્ક બનાવીએ છીએ. 1 મેગાવોટથી લઈને 100 મેગાવોટ સુધીના સોલર પાર્ક બનાવીએ છીએ અને આખા ગુજરાતમાં અમે દરેક ડિસ્કોમમાં UGVCL, PGVCL, MGVCL અને DGVCL દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક ડિસ્કોમની અંદર અમે કામ કરીએ છીએ. આજે દિવ્ય ભાસ્કરની આ એવોર્ડ સેરેમનીમાં અમને એવોર્ડ આપવા બદલ બહુ જ ખૂબ જ આભાર માનું છું અને ભવિષ્યમાં અમે MSME ક્ષેત્રે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં સારું કામ કરશું એવી શુભેચ્છાઓ. मेरा नाम संजय कुमार है, मैं DGM हूँ. SBI बैंक तो काफ़ी दिनों से है, 55 ईयर्स. और आप MSME के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम लोग SBI में स्टेट बैंक ने काफ़ी MSME पे जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसके साथ अलाइन करके काफ़ी नई पॉलिसीज़ लाई हैं और हम लोगों ने काफ़ी इस पर डिजिटल क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है.